हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। कैन वी स्टार्ट द क्लास? ये सबका स्वागत है। थके हुए तो नहीं है ना आप? हाँ, थके हुए तो नहीं है ना? मेरे को कल सुबह मंगल आरती तक शक्ति है पूरा। हाँ ठीक है। तो हमारे रूपलास प्रभु जी की ग्रुप है और बीआरसी के कुछ लोग हैं हमारे साथ। आज का चौथा क्लास है मेरा। हाँ, तो आपका स्वागत है। हिंदी में कितना है? आज श्रीमद् भागवतम का अमृत पिएंगे एकादशी के दिन। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभु जी आवाज बहुत स्लो है आवाज। हरे कृष्णा। स्लो है क्यों? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। माने शायद आप ऑडियो से थोड़ा दूर बैठे हैं। नहीं, वो रिकॉर्डिंग का मैसेज आ जाता है ना बीच में, तो कीर्तन के बीच में हाथ नहीं लगा सकते। हाँ अभी ठीक है। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लीला मनोहर प्रभु है क्या? नहीं है प्रभु जी, लीला मनोहर प्रभु जी नहीं। हिंदी भागवत शेयर कर सकते क्या? मेरे पास अभी हिंदी भागवत नहीं है। हिंदी भागवत मुश्किल होगा प्रभु जी। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, फिर हिंदी में क्लास देंगे। ओके। सो रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, कैंटो 4, द क्रिएशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर, चैप्टर 10, ध्रुव महाराज फाइट विद द यक्षस, वर्स नंबर 30, 4.10.30। मुन्य उवाच अतौनोपाद् भगवांस्तम शारं धन्व देव शिनोत्व अवनतार्ति हरो विपक्षान्, यन्नामधेयम् अभिधाय निशम्य चाधा लोको अंजास तरति दुस्तरम अंग मृत्युम। Translation and purport by Srila Prabhupada. Translation. All the sages said, Dear Dhruva, O son of King Uttanapad, may the Supreme Personality of Godhead, known as Sharang Dhanva, who relieves the distresses of his devotees, kill all your threatening enemies. The holy name of the Lord is as powerful as the Lord himself. Therefore, simply by chanting and hearing the holy name of the Lord, many men can be fully protected
from fierce death without difficulty. Thus a devotee is saved. Purport by Srila Prabhupada. The great rishis approached Dhruva Maharaj at a time when his mind was very perplexed due to the magical feats exhibited by the Yakshas. A devotee is always protected by the Supreme Personality of Godhead. By his inspiration only, the sages came to encourage Dhruva Maharaj and assure him that there was no danger because he was a soul fully surrendered to the Supreme Lord. By the grace of the Lord, if a devotee at the time of death can simply chant his holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Simply by chanting this Maha Mantra, he immediately surpasses the great ocean of the material sky and enters the spiritual sky. He never has to come back for repetition of birth and death. Simply by chanting the holy name of the Lord, one can surpass the ocean of death. So Dhruva Maharaj was certainly able to surpass the illusory magical feats of the Yakshas, which for the time being disturbed his mind. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 10th chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Dhruva Maharaj's Fight with the Yakshas. Om Agyantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 10। ये ध्रुव महाराज की कथा है ये सब अध्यायों में। तो ध्रुव महाराज तपस्या करके जब घर लौट आए और सही समय आया तो उनके पिता उत्तानापाद ने उनको राजा बनाया और खुद जंगल चले गए, संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया अपना महल, अपना परिवार, अपना सेना, अपना शस्त्र, अपना ऐश्वर्य, अपना प्रजा, अपना गद्दी, और वो जंगल में तपस्या करने के लिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए चले गए। जब उत्तानापाद गए तो ध्रुव महाराज का विवाह हुआ नहीं था, और ऐसे तो शास्त्रों में बताया गया है कि एक पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों का विवाह करने के बाद ही रिटायर होना चाहिए ताकि बच्चे अपना जीवन शुरू करें। उत्तानापाद ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता था कि ध्रुव के विवाह के लिए मैं अपना आध्यात्मिक जीवन को डिले नहीं करूं, को देरी से नहीं करूं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ध्रुव तो अपना विवाह कर ही लेगा। तो देखिए इतने महान राजा है उत्तानापाद, लेकिन फिर भी वो घर का त्याग करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बहुत ज़रूरी है। हमारा जो परिवार के प्रति कर्तव्य है या समाज में जो नेता होता है उसका प्रजा के प्रति कर्तव्य है, उसे कई गुना ज़्यादा उसका खुद के प्रति कर्तव्य है। जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, कि मेरा जन्म सार्थक होना चाहिए।
मैं जो जन्म लिया हूँ मनुष्य समाज में, मनुष्य शरीर में, वो सफल होना चाहिए। ये जन्म आखिरी जन्म होना चाहिए। नो मोर बर्थ, वापिस जन्म नहीं होना चाहिए। वापिस माँ के पेट में नहीं जाना है। वापिस 9 महीने उल्टा नहीं लटकना है गर्भ में। वापिस ABCD नहीं सीखना है, या वापिस बाबा ब्लैक शिप नहीं करना है। हमें ये जन्म आखिरी जन्म भगवान के धाम जाना है। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब श्रील प्रभुपाद जी पहली बार अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले थे, तो तब भारत आज़ाद नहीं था, ब्रिटिश का राज था। और आज़ादी के लिए महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये सब नारे लगाते थे इंडिपेंडेंस के लिए, डू और डाई के लिए। और श्रील प्रभुपाद जी खुद भी गांधीवादी थे। उस समय खादी कपड़ा पहनते थे, गांधी के भाषण सुनते थे, और अपने मित्रों में एक नेता थे जो गांधी के विचारों का चर्चा करते थे। तो जब वो पहली बार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले, तो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने उनको देखा और कहा कि आप तो शिक्षित नौजवान हो, आपको अंग्रेजी भाषा में श्री चैतन्य महाप्रभु का जो फिलॉसफी है, दर्शन है, ज्ञान है, वो शिक्षा आपको विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उनको प्रश्न पूछा कि हमारी बातें कौन सुनेगा जब तक हम आज़ाद नहीं होंगे। हमारा देश आज़ाद नहीं है, हम गुलाम हैं, हमारी बातें कौन सुनेगा। हमें पहले आज़ादी हासिल करना चाहिए, बाद में ये प्रचार होता रहेगा, भक्ति होता रहेगा। पहले आज़ादी ज़रूरी है, क्योंकि पूरा भारत जल रहा था, डू और डाई, करो या मरो। आज़ादी के लिए पूरा भारत जल रहा था। सब लोग सिर्फ आज़ादी की बात कर रहे थे। और यहाँ पर एक सन्यासी कहते हैं कि जाओ विदेश में जाकर अंग्रेजी में प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी ने चैलेंज किया कि पहले हमें आज़ाद होना चाहिए, एक गुलाम मुल्क के आदमी का कौन बात सुनेगा। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार अर्जेंट काम है, ये भारत के आज़ादी के लिए इंतजार नहीं कर सकता। पूरे भारत में कोई ऐसा नहीं था जो आज़ादी के खिलाफ बात करे या आज़ादी के अलावा बात करे किसी और आंदोलन के। पूरे भारत में नेहरू और गांधी के विचारों के ऊपर सब लोग आज़ादी की बात करते थे। और यहाँ एक सन्यासी है कलकत्ता में टेरिस पे बैठकर बोल रहे हैं कि आज़ादी से भी ज़्यादा जरूरी है चैतन्य महाप्रभु का प्रचार। और श्रील प्रभुपाद जी एक दो और प्रश्न पूछे और वो सुनकर हार गए। जो गांधी के विचारों पर चलते थे प्रभुपाद जी, वो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के उत्तर सुने तो वो हार गए। और प्रभुपाद जी ने कहा मैं हार गया, पहली बार मैं जीवन में हारा, और मुझे अच्छा भी लगा कि चैतन्य महाप्रभु का प्रचार सही हाथों में है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अर्जेंट, वो किसी के लिए रुकना नहीं है। मेरी साधना, मेरी भक्ति में प्रगति अर्जेंट, वो किसी के लिए रुकना नहीं है। मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे सेहत के लिए, मेरे व्यापार के लिए, मेरे बीवी के लिए, मेरे परिवार के लिए, या कोविड जाने के लिए रुकना नहीं है। बहुत अच्छी तरीके से हमें भक्ति करना है। तो उत्तानापाद नारद मुनि से सीख चुके थे कि कृष्ण भावनामृत जरूरी है। मेरे बेटे को 5 साल की उम्र में कृष्ण के दर्शन हो गए, तो बिना ध्रुव महाराज के विवाह के वो राज्य छोड़कर चले गए। किंग भरीषद भी ऐसे ही थे। प्रचेतास उनके जो पुत्र थे वो जंगल गए थे तपस्या करने के लिए। और भरीषद जब अपना राज्य त्याग किए तो जनरली वो इंतजार करना चाहिए कि पुत्र आएंगे, पुत्र को गद्दी पे बिठाएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन राज्य मंत्रियों के हवाले करके चले गए कि आप देखो राज्य, मेरे पुत्र आएंगे, जब आएंगे मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए।
कर्दम मुनि भी संन्यास लिए जब उनके पुत्र खुद कृष्ण थे उनके घर में। अरे संन्यास क्यों लेते हो? कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। कृष्ण तो आपके घर में आपका पुत्र है, फिर भी संन्यास ले रहे हो आप? हमको सिखाने के लिए कि मेरा पुत्र कृष्ण है, फिर भी मैं गृहस्थ आश्रम त्याग कर रहा हूं। आप कौन है जो गृहस्थ आश्रम में अभी तक बैठे हैं? हमको सिखाने के लिए वो संन्यास लिए। तो बड़े राजा भरत महाराज और ऐसे बड़े राजा धृतराष्ट्र वो छोड़ देते थे ऐशो आराम की जीवन और जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। चलो आज हम लोग जंगल में नहीं रह सकते तो मंदिर में रहना चाहिए, वृंदावन धाम में रहना चाहिए या मंदिर के नज़दीक रहना चाहिए और एक्टिव सोशल लाइफ बंद कर देना चाहिए। कमाना, समाज में रिश्ता रखना बंद कर देना चाहिए और सिर्फ सेवा करना चाहिए, साधना करना चाहिए। तो उत्तनापाद इसी सेवा और साधना के लिए घर छोड़ दिए और ध्रुव महाराज उसके बाद प्रजापति शिशुमार है उनके पुत्री से विवाह किए और बाद में वायु के पुत्री से भी विवाह किए और उनको एक बच्चा और एक बेटी हुआ। एक दिन ध्रुव महाराज का सौतेला बेटा उत्तम, वही उत्तम जो बचपन में अपने पिता के गोदी में बैठे थे और ध्रुव महाराज भी बैठना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने मना किया। वही उत्तम एक बार शिकार खेलने गया जंगल में। अभी शादी नहीं हुआ था, जवान लड़का था, वो शिकार खेलने गया। तो जंगल में अलकापुरी शहर है, जंगल के उस तरफ हिमालय में, वहाँ से कुछ यक्ष रहते। यक्ष मतलब जो भूतों की योनि टाइप होता है, भूतों जैसे होते हैं, शिव जी के उपासक होते हैं, कुबेर के फॉलोअर्स होते हैं यक्ष। तो वो यक्षों ने बिना किसी कारण के उत्तम को मार दिया, उसका हत्या कर दिया। और जब उत्तम का हत्या हुआ तो वो खबर सुनकर दुखी में सुरुचि भी भाग भाग के गई जंगल में और वो भी गिरकर मर गई। उत्तम और सुरुचि दोनों मारे गए। हमें मालूम होना चाहिए कि ये दोनों इसलिए मारे गए क्योंकि इन्होंने वैष्णव अपराध किया था, ध्रुव महाराज के प्रति इन्होंने अपराध किया था। कभी जब ध्रुव महाराज वैष्णव नहीं थे, ध्रुव महाराज 5 साल के लड़के थे जब सुरुचि और उत्तम ने उनको अपमान किया था। उसके बाद वो जंगल में जाकर वैष्णव बने, फिर भी उनको वैष्णव अपराध लगा। देखिए वो व्यक्ति वैष्णव नहीं है लेकिन भविष्य में साधु बनने वाला है, वैष्णव बनने वाला है, तो भी हमें अपराध लगता है, वैष्णव अपराध। इसलिए वैष्णव का तो अपराध नहीं करना चाहिए, जीव का भी अपराध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जीव भविष्य में जाकर वैष्णव बनेगा तो हमें वैष्णव अपराध लगता है। इसलिए कभी किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए, किसी को अपमान नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, किसी का निंदा नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, फिर वो हमें भी वापस आती है। तो जब यक्षों ने उत्तम को मार दिया और सुरुचि भी मारी गई और ध्रुव महाराज को खबर मिली तो वो बहुत क्रोधित हो गए और बहुत दुखी हो गए और वो अपने रथ में बैठकर अपना मुकुट कवच पहन के अपने शस्त्र लेकर चले गए अलकापुरी में यक्षों से युद्ध करने के लिए, यक्षों का से बदला लेने के लिए। वो बहुत क्रोधित हो गए थे। अभी कोई सोचेगा ये शुद्ध भक्त क्रोधित क्यों हो गया? तो ये राजा का कर्तव्य है कि अगर उसके प्रजा पे हमला हो जाए तो दुश्मन को उसने क्षत्रिय के रूप में जवाब देना चाहिए। तो वो रथ पे बैठकर अलकापुरी की तरफ गए, उत्तर की तरफ हिमालय में। वहाँ पर उन्होंने देखा इतने सारे यक्ष, लाखों यक्ष हैं और ध्रुव महाराज अकेले, लेकिन फिर भी वो डरे नहीं और उन्होंने अपना शंख बजाया। इतना जोर से गर्जना हुआ उनके शंख का कि वो आवाज़ पूरे आकाश में हिलने लगा और यक्ष डर गए। यक्ष की पत्नियां डर गई कि अभी हम विधवा हो जाएंगे और सब डर के चिंता में पड़ गए। ऐसा ही हुआ था महाभारत के युद्ध में जब भगवान कृष्ण अर्जुन ने शंख बजाया था, जब भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज ने शंख बजाया था, दुर्योधन और की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए थे।
ऐसा ही हुआ था जब भगवान कृष्ण नरकासुर को मारने गए थे तो शंख बजाया था, तो उस शंख से जब सिपाही के जो हृदय थे वो हिलने लगे थे। हमें पता होना चाहिए कि नरकासुर के जो सिपाही थे उनके हृदय को एक सूक्ष्म कवच से बांधा था। नरकासुर के सिपाही के जो हृदय थे, राक्षसों के हृदय, असुरों के हृदय, उस हृदय को एक सूक्ष्म कवच से नरकासुर ने मंत्रों से बांध के रखा था कि कोई इसको मार नहीं सकता, इसके व्यक्ति को, इसका हृदय हमेशा सुरक्षित रहेगा। भगवान ने शंख बजाकर वो सूक्ष्म कवच तोड़ दिए ताकि उनके हृदय असुरक्षित रहे और कमजोर हो जाए, और एक तीर मारे तो उसका हृदय में छेद होकर वो मर जाए। शंख से उन्होंने उनके सुरक्षा कवच तोड़ दिए। तो ये दिव्य आवाज जो है, दिव्य ध्वनि जो है, उसका परिणाम, उसका प्रभाव, हम जो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, तो कान के होल से, कान के खड्डे से वो हृदय में जाता है और हमारे हृदय में जो गंदगी है उसको तोड़ देता है, हमारे हृदय में एक दिव्य आनंद प्रदान करता है, हमारे हृदय को साफ करता है। चेतो दर्पणम मार्जनम, ये ध्वनि से ही संभव है और कोई क्रिया से संभव नहीं है। इसलिए अपने हृदय को साफ करने के लिए हमें रोज हरिनाम करना चाहिए। तो ध्रुव महाराज शंख बजाए तो सब लोग घबरा गए, लेकिन फिर भी जो यक्षों के लीडर थे, सेनापति थे, वो अपना अपना शस्त्र, धनुष बाण, तलवार, भाला और ट्रिडेंट, त्रिशूल और ये सब लेके उनको ध्रुव महाराज के ऊपर आक्रमण किया। 1,30,000 यक्ष सैनिक थे जिनके पास धनुष बाण थे, और हर व्यक्ति ने 3-3 तीर ध्रुव महाराज को मारे। सोचो 1,30,000 लोग 3-3 तीर ध्रुव महाराज को मार रहे, 3,90,000 तीर एक साथ ध्रुव महाराज को मारे। इतना उन्होंने भयंकर आक्रमण किया, और ध्रुव महाराज अपने एक धनुष बाण से इन 3-3 तीरों को तोड़ दिया, 3,90,000 तीरों को तोड़ दिया, और हरेक को उन्होंने तीर मारकर कितने लोगों का गला काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी का पेट काट दिया। बहुत आसानी से उन्होंने उसको हरा दिया। इसको कहते हैं महारथी। महारथी जो बहुत सारे रथियों के साथ, बहुत सारे सिपाहियों के साथ, बहुत सारे शस्त्र वाले सिपाहियों के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होना चाहिए, बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, बहुत कलात्मक होना चाहिए और बहुत तेज होना चाहिए। तो आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, चारों तरफ वो उसको देखकर तीर लगा मारना चाहिए। तो जब यक्षों ने देखा कि ध्रुव महाराज बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छा धनुष बाण चलाते हैं, और हम में से कितने कोई उन्होंने घाव दे दिया, जख्मी कर दिया, तो वो बहुत गुस्सा हो गए। जैसे किसी सांप के ऊपर पैर रखा तो कितना गुस्सा हो जाता है, और वो इतना गुस्सा हो गए कि वो अभी 6 तीर मारा ध्रुव महाराज को, और किसी ने बहुत सारे त्रिशूल फेंके, किसी ने ट्रिडेंट स्वॉर्ड फेंके, तलवार फेंके, और किसी ने भाले फेंके, किसी ने गदा फेंकी, किसी ने तीर फेंके, किसी ने शक्ति फेंकी। इतना कुछ उन्होंने ध्रुव महाराज के ऊपर फेंका कि कुछ समय तक लगा कि ध्रुव महाराज सिर्फ शस्त्रों से गिर गए। आकाश में जैसे बारिश आता है तेज और पूरा पानी में भीग जाते हो आप, उसी तरह ध्रुव महाराज पूरे शस्त्रों से घिर गए। ध्रुव महाराज ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ शस्त्र दिखाई दे रहे थे। और ये जो दृश्य था वो सिद्ध लोक से सिद्ध देख रहे थे। सिद्ध वही लोग हैं जो कृष्ण को भजन करते हैं। वो ध्रुव महाराज को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि ध्रुव महाराज 6 महीने में कृष्ण को प्राप्त किए थे। जो सिद्ध लोगों को हजारों साल लगते हैं, वो उन्होंने 6 महीने में, 100 साल, हजारों साल लगते हैं, वो ध्रुव महाराज को 6 महीने में सिद्धि प्राप्त हुआ था।
तो सिद्ध लोग बहुत हितैषी थे। तो जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज पूरा शस्त्रों से ये हो गए हैं तो उनको बहुत दुख हुआ। उनको लगा कि अब ध्रुव महाराज खत्म हो गए। जैसे सूर्य अस्त होता है तो किसी मूर्ख को लगता है कि अभी सूर्य खत्म हो गया, लेकिन एक्चुअली सूर्य खत्म नहीं होता है। सूर्य अभी भी वहीं है जहाँ पर था, हमें दिखाई नहीं देता है। तो उसको लगा कि ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़े समय के लिए यक्ष जीत गए। लेकिन फिर ध्रुव महाराज जो इतने महान महारथी हैं, जो इतने क्षत्रिय हैं, वो तुरंत प्रकट हो गए। जैसे सूर्य अचानक फॉग धुआं जो होता है अचानक जब निकल जाता है और सूर्य प्रकट होता है, तुरंत अपने रथ के साथ सूर्य जैसे चमकते हुए ध्रुव महाराज प्रकट हो गए। और उन्होंने अपने तीर से इतने अपने धनुष से इतने तीर चलाए, लाखों तीर चलाए और लगभग सबको मार दिया और जख्मी कर दिया। लाखों यक्ष को उन्होंने मार दिया और जो नहीं मरे वो जख्मी हो गए, हाथ पैर तोड़ दिया। जैसे तेज तूफान आता है तो पूरा जंगल साफ हो जाता है, जैसे हाथियों का झुंड आता है तो पूरा खेत साफ हो जाता है, वैसे ही ध्रुव महाराज ने इतना सारा धनुष बाण चलाया, इतने सारे बाण चलाए, तीर चलाए कि यक्षों का सेना साफ हो गया। हम देखते हैं रामायण में भगवान राम भी जब बाण चलाते थे, राम बाण, ये तो ब्रांड नेम हो गया है, राम बाण। कोई भी अच्छा समस्या का हल मिल जाए, जो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये काम करेगा, तो कहेगा ये राम बाण है, राम बाण दवाई है, या राम बाण चाबी है। तो भगवान राम भी अकेले 14,000 दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों को अकेले 2 घंटे में समाप्त किए थे। अकेले लाखों तीर छोड़े थे और उन्होंने सबको समाप्त किए थे। अर्जुन भी गांडीवधारी थे, अकेले बड़े बड़े सेना को युद्ध करके समाप्त करते थे। तो ध्रुव महाराज ने भी ऐसे ही अकेले इतने सारे बाण चलाए कि सब यक्षों को उन्होंने मार दिया। और जो बच गए वो भाग गए, किसी का हाथ कट गया, किसी का सर कट गया, किसी का पैर कट गया। और लाखों गहने जो थे शरीर के वो सब उधर पड़े हुए थे। लाखों सोने के मुकुट थे, लाखों नेकलेसेस थे डायमंड के, लाखों हाथ के बैंगल्स और रिंग्स थे। और कोई भी व्यक्ति इतना सारे लाशें, इतने सारे कटे हुए सर, इतने सारे कटे हुए हाथ पैर और इतना सारा नदी जैसा बहता हुआ खून देखकर डर जाएगा। कोई साधारण व्यक्ति ये चीज देख नहीं सकता है। और इतना सारा सोना, गहने, हीरे देखकर कोई भी आकर्षित हो जाएगा। लेकिन ध्रुव महाराज को दोनों से फर्क नहीं पड़ा, न खून से, न कटे हुए सर से, न हाथ पैरों से और न ही गहनों से। उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो जो यक्ष बच गए वो सब भाग गए, मैदान खाली हो गया। तो ध्रुव महाराज जीत गए, वो खुश हो गए। उन्होंने सोचा अभी मैं थोड़ा शहर देखूं। अलकापुरी शहर जो है यक्षों का शहर, कुबेर के फॉलोअर्स का शहर है, तो बहुत ऑपुलेंट है, बहुत ऐश्वर्यपूर्ण है। तो उनकी इच्छा हुई कि ये शहर देखूं मैं, शहर कैसा है। लेकिन फिर उनके मन में शंका आई कि ये यक्षों का भरोसा नहीं है, ये मायावी है, ये अभी हो सकता है डर के भाग गए हों, लेकिन बाद में छुप के वार कर सकते हैं, छुप के आक्रमण कर सकते हैं। अभी वो सोच ही रहे थे कि तभी बहुत जोर से गर्जना हुआ, बहुत जोर से आवाज हुआ। और अचानक उन्होंने देखा कि एक समुद्र की तरह बहुत धुआं उनकी तरफ आ रहा है। ये यक्षों की मायावी शक्ति थी। मतलब ये सब झूठा सीन था, लेकिन आपको देखने में सच्चा दिखेगा। तो बहुत धूल तूफान आ रहा है, बहुत आंधी आ रही है, बहुत धुआं आ रहा है, बहुत मिट्टी आ रही है उनके तरफ। और थोड़ी देर में पूरा जो आकाश था वो बादलों से घिर गया, काले काले घने बादलों से घिर गया। और इतना जोर से आवाज आ रहा था जैसे समुद्र में बहुत लहरें उठती हैं, हाई टाइड होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं तो कितना आवाज आता है, वैसा उनके कानों में आवाज आ रहा था। और बहुत घंघोर वर्षा हो रही थी, बहुत बिजली चमक रही थी। और उस वर्षा में सिर्फ पानी नहीं था, खून था, पेशाब था, हड्डी था, मांस था, पस था, म्यूकस था और इतना गंदी गंदी चीज़ें थी
जो जोर जोर से ध्रुव महाराज के आजू बाजू गिर रही थी और बड़े बड़े लाशें गिर रही थी। फिर बहुत सारे त्रिशूल गिर रहे थे, बहुत सारे तीर गिर रहे थे, बहुत सारे तलवारें गिर रही थी, बहुत सारे भाले गिर रहे थे, बहुत सारे गदा गिर रहे थे, बहुत बड़े बड़े चट्टान और पत्थर गिर रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति डर जाएगा ये सब देख के कि तीरों का बारिश हो रहा है, खून का बारिश हो रहा है, पेशाब का बारिश हो रहा है, मल का बारिश हो रहा है। और फिर बड़े बड़े सांप दिखाई दिए, अजगर, जिनके मुंह से आग उगल रही थी, जिनके आंख बहुत लाल थे कि वो आपको खाने को आ रहे हो। और फिर बड़े बड़े पागल हाथी, पागल शेर, पागल चीता, पागल जानवर वो आपकी तरफ आ रहे आपको मारने के लिए। ऐसा लग रहा था कि अभी पूरा दुनिया खत्म होने वाला है। जैसे दुनिया के अंत में पूरा पानी जमा हो जाता है और पूरी दुनिया पानी में डूब जाती थे, ऐसा माहौल हो गया था। ये यक्ष असुर प्रवृत्ति के हैं जो किसी को परेशान करने के लिए, किसी का मन उलझन में डालने के लिए, किसी का मन विचलित करने के लिए ये सब करते हैं। एक बद आत्मा भी माया के प्रभाव में कभी कभी चिंतित हो जाता है, छोटे सी बात पे बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, बहुत हृदय हैवी हो जाता है। कितने लोग तो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। स्कूल में नंबर कम आए, आत्महत्या करते हैं। गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप किया, आत्महत्या करते हैं। नौकरी छूट गई, आत्महत्या करते हैं। पैसा नुकसान हो गया, आत्महत्या करते हैं। गलती पकड़ लिया, आत्महत्या करते हैं। या गलती छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तो जब मन कमज़ोर हो जाता है, मन दुर्बल हो जाता है और हम जीवन की कठिनाई को सहन नहीं कर सकते, तो हम अपने व्यवहार में पाप लाते हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, छुपना और बहाना बनाना, सुस्ती होना या आत्महत्या करना, डिप्रेशन में जाना, एंग्जाइटी में होना, या गलत मित्रों के साथ ड्रग लेना, दारू पीना, शराब पीना, सिगरेट पीना, मन को ठीक करने के लिए ये सब करना। तो ये सब जरूरी नहीं है। कितना भी कठिन समस्या आ जाए जीवन में, हमें हरिनाम का सहारा लेना चाहिए। प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी कठिनाई आई। उनके खुद के पिता उनको मारना चाहते थे, जहर पिलाए, हाथियों के नीचे कुचलवाए और शस्त्रों से मारने का कोशिश किया, आग से जलाने का कोशिश किया, समुद्र में डुबाया, ऊंचे पहाड़ी से फेंका, लेकिन फिर भी वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहे और बच गए। तो हमारे जीवन में भी कठिनाई आती है, हमें डरना नहीं चाहिए, कृष्ण का सहारा लेना चाहिए। माया कितनी भी शक्तिशाली हो, कृष्ण उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। कृष्ण शक्तिमान है, माया शक्ति है तो कृष्ण शक्तिमान है। तो जब शक्ति से डर लगता है तो शक्तिमान के पास जाना चाहिए। सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, सोर्स ऑफ ऑल पावर, सोर्स ऑफ ऑल पोटेंसी, शक्ति के स्रोत है कृष्ण। तो यक्ष का स्वभाव ही आसुरिक है और हिंसक है, और उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से ऐसा ऐसा दृश्य प्रकट किया कि कोई भी कम बुद्धि वाला व्यक्ति उलझन में आ जाए, डर जाए। तो उन्होंने ध्रुव महाराज के साथ ऐसा किया कि ध्रुव महाराज का सब परेशान हो जाए। तब जो ऋषि मुनि थे वो ये सब देख रहे थे अपने दिव्य दृष्टि से, वो तुरंत उधर आए ध्रुव महाराज को संभालने के लिए कि आप घबराइए मत, आपके साथ सब शुभ होगा। क्यों? क्योंकि आप कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। और जो अभी हमने श्लोक पढ़ा, उन्होंने ये श्लोक बताया, जो मैं एक बार वापस पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा श्लोक है ये, अध्याय का आखिरी श्लोक है। कहाँ है? कि सब ऋषि मुनियों ने कहा कि हे ध्रुव महाराज, हमारे जो कृष्ण भगवान है उनका एक नाम है शारंग धनवा। शारंग मतलब भगवान का जो धनुष है उसको शारंग कहते हैं। शारंग धनवा, जो शारंग नाम का धनुष बाण अपने हाथ पे रखते हैं। तो शारंग धनवा का नाम इसलिए बताया गया है कि भगवान के पास भी धनुष बाण है, जो एक तीर से ये पूरा माया खत्म कर सकते हैं। ये जो हजारों पत्थर आ रहे हैं, जो बारिश आ रही है, जो खून गिर रहा है, जो धुआं आ रहा है, जो बादल है, जो हाथी है, ये सब एक तीर से भगवान खत्म कर सकते हैं।
रामायण में हम देखते हैं कि जब भगवान लंका जाना चाहते थे, भगवान राम, और समुद्र बीच में था, तो उन्होंने मर्यादा में रहते हुए 3 दिन तक उपवास किया, फास्टिंग किया, निर्जल रखा कि समुद्र देवता प्रसन्न होकर हमें मार्ग दे। लेकिन जब समुद्र देवता 3 दिन के बाद भी नहीं सुने तो इतने क्रोधित हो गए कि अपना एक बाण छोड़ा कि अभी समुद्र को सुखा देते हैं, हम चल के जाएंगे। लेकिन बाण छोड़ने के पहले ही समुद्र देवता आकर माफ़ी मांगे, बोले मुझे माफ़ कीजिए। तो उन्होंने कहा बाण तो मैं चढ़ा चुका हूँ, अभी कहीं तो छोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा कि ऐसे दिशा में छोड़िए जहाँ पर असुर रहते हैं, असुर मारे जाएंगे। और उन्होंने ऐसा ही किया। राम बाण कभी विफल नहीं जाता है। तो भगवान का एक बाण काफ़ी है। तो इधर ऋषि मुनि कह रहे हैं कि वो जो शारंग धन्व है वो हमेशा अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। दीन बंधु जो भक्त दुखी हैं, जब वो कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण गारंटीड उनका दुख दूर करते हैं। उत्तरा को इतना दुख था कि एक अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था उसके गर्भ में उसके पुत्र परीक्षित को मारने के लिए, और वो दौड़ी दौड़ी गई भगवान कृष्ण के पास, और कृष्ण ने उसके पुत्र को बचाया और ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। तो कोई भक्त कितना भी दुखी हो, जब वो भगवान के पास जाता है तो भगवान उसका दुख दूर करते हैं। भगवान अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भगवान अपने दुश्मनों का सफाया करते हैं। इंद्र कितनी बार भगवान को प्रार्थना किया है, और भगवान अवतार लेकर इंद्र को बचाने के लिए असुरों का विनाश करते हैं। असुर जब भी थोड़ा शक्तिशाली होते हैं वो इंद्र को आक्रमण करते हैं ताकि इंद्र की गद्दी प्राप्त हो जाए। और इस तरह से देवता और असुरों का हमेशा युद्ध होता है, लेकिन भगवान हमेशा अवतार लेकर देवताओं की तरफ से असुरों का विनाश करते हैं। वराह अवतार के रूप में हिरण्याक्ष का विनाश किया, नरसिंह के रूप में हिरण्यकशिपु का विनाश किया, राम के रूप में रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, इंद्रजित को मारा, और कृष्ण के रूप में तो असुरों कंस को मारा, जरासंध को मारा, पूतना को मारा। हमेशा वो अपने भक्तों के दुश्मनों का, जो साधु का दुश्मन होता है, उसका विनाश करते हैं। युधिष्ठिर को बचाया, द्रौपदी को बचाया, अर्जुन को बचाया, सीता माता को बचाया, गजेंद्र को बचाया, प्रहलाद महाराज को बचाया। तो ऋषि मुनि भगवान ध्रुव महाराज को कह रहे हैं कि भगवान का नाम ही काफी है, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान कृष्ण इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो सब दुख चले जाते हैं, सब दुश्मन चले जाते हैं, सब डर चले जाता है, सब खतरा चले जाता है। इसलिए हे ध्रुव महाराज, आप घबराओ मत, आप सिर्फ भगवान का नाम लो, ये सब माया चली जाएगी। और ये सही बात है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान का नाम लेकर जब वो नारायण अस्त्र चलाते हैं, भगवान के नाम का अस्त्र चलाते हैं, तो ये सब माया खत्म हो जाती है। तो हमारे जीवन का दुख भी चला जाएगा जब हम भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, लेकिन भगवान का नाम सिर्फ दुख के विनाश के लिए नहीं लिया जाता। ये तो बहुत छोटा सा काम है। भगवान का नाम उससे बड़ा काम करता है, वो है हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान की सेवा करें। इसलिए कुछ पाने के लिए भगवान की सेवा नहीं करना है, कुछ देने के लिए भगवान का नाम लेना है। ये शुद्ध भक्ति है कि कुछ देना है कृष्ण को। ले तो रहे हम जब बचपन से, करोड़ों सालों से, सब कुछ तो उन्होंने दिया। शरीर दिया, ये ऑक्सीजन दिया, ये फल दिया, ये बारिश दिया, ये अग्नि दिया, ये धरती दिया, सब कुछ तो दिया उन्होंने। अभी हमारा देने का काम है। भगवान को सबसे बड़ी चीज़ दीजिए, अपना चेतना, अपना टाइम दीजिए। रोज़ सुबह उठकर मंगल आरती करेंगे, नरसिंह आरती करेंगे, तुलसी आरती करेंगे, 16 माला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करेंगे, जप करेंगे, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा करेंगे, भागवत क्लास सुनेंगे, भक्तों का, गाय माता का सेवा करेंगे, 4 नियम पालन करते हुए जीवन जिएंगे, ईमानदारी का कमाएंगे। इस तरीके से हम जीवन जिएंगे तो अपना अच्छा चेतना हो जाएगा। उस चेतना को भगवान को समर्पित करना चाहिए। जैसे कोई पुजारी पूजा कर रहा है तो वो सिर्फ अगरबत्ती नहीं ऑफर कर रहा है, अपना शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, तो शरीर स्वच्छ होना चाहिए। अपने हृदय का इस्तेमाल कर रहा है, मन का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका चेतना भी स्वच्छ होना चाहिए। मालूम पड़ा अगरबत्ती साफ है, आरती प्लेट साफ है, खुद नहाया नहीं है, वो ठीक नहीं है। मालूम पड़ा नहाया है, कपड़े भी साफ है, लेकिन हृदय साफ नहीं, वो भी ठीक नहीं है। सब कुछ साफ होना चाहिए। तो अपनी चेतना भगवान को अर्पित करना चाहिए, शुद्ध चेतना जो हरिनाम से होती है, भागवत कथा से सुनने से होती है।
तो हमारे जीवन में कोई खतरा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोदी में, कोई समस्या नहीं, माँ संभाल लेगी। जो बच्चे का ज़रूरत है, पानी चाहिए, नैपी चेंज करना है, नींद आ रहा है, दूध चाहिए, या स्कूल जाना है, टाइम टेबल बनाना है, डब्बा चाहिए, फीस चाहिए। आजकल तो होमवर्क भी बच्चे का माँ बाप भी करते हैं। बच्चे को क्या बात है, बस जाना है, खेलना है। तो माँ के गोदी में जब बच्चा होता है तो उसको सब ज़रूरत पूरा हो जाता है। उसी तरह हम कृष्ण के शरण में रहेंगे तो सब ज़रूरत पूरा हो जाएगा। तो इस विश्वास से हमें भक्ति करना चाहिए कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूं, अगर मैं कृष्ण की सेवा करूं, तो मुझे जीवन में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पूरा ज़रूरत पूरा हो जाएगा, पूरा सफलता प्राप्त हो जाएगा, पूरा परफेक्शन सिद्धि आ जाएगा, जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आई जस्ट हैव टू सर्व कृष्ण, दैट्स ऑल। ये विश्वास होना चाहिए पक्का कि मुझे सिर्फ कृष्ण की सेवा करना है। और इस तरीके से, इस निश्चय के साथ हम जीवन जिएंगे, रोज़ भक्ति करेंगे, तो हमारा चेतना में विकास होता है। आखिर में हम भगवान के पास पहुंच जाते हैं। यही मनुष्य जीवन का सफलता है। मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, नहीं तो फिर अगला जन्म पता नहीं कुत्ता बिल्ली बनेंगे, क्या फ़ायदा। तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का मौका का इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छी तरीके से भक्ति करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई कमेंट्स हैं या प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, हरीश किसी के नारायण भी सवालों को कृपया अपने हाथ उठाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बोलिए कौस्तुभ कृष्ण को। प्रभु जी, आज की कथा से हमारे अंदर एक विश्वास सा पैदा हो जाता है। पहले थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं हम लोग, क्या करें कि जो ज़्यादा भक्ति में है, क्या करें तो क्या उससे ज़्यादा हम लोगों को पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा। मगर आज इससे बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला। अच्छी बात है कि अगर ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से छूटने का है, तो ये जो लाइफ, मनुष्य लाइफ है, इट शुड बी द लास्ट लाइफ। यस, लास्ट बर्थ, नो मोर बर्थ। ओके, देयर नो क्वेश्चंस, वी विल एंड। गृहस्थ जीवन में रह के भी तो, अभी पहले तो जंगल में चले जाते थे लोग घर बार छोड़ के, अभी गृहस्थ जीवन में रह के भी कर सकते हैं ऐसा। हाँ, संन्यास। घर को ही मंदिर बनाइए और हाँ। मंदिर से जुड़ते रहुए, भक्ति करना चाहिए। हाँ, बराबर। ठीक है। So I'm going to unmute all. We'll say Hari Bol to Prabhuji for the beautiful